Hi everyone, my name is Bhav Kumar Jha. I'm a CA final student and currently I'm doing my articleship from EY in the direct tax team. So in this video, I'm going to tell you a few important things which helped me to score 93 marks in CA Foundation accounts and which you also should keep in mind if you want to get an excellent score in this subject. So without wasting a minute, let's start this video. First thing is you have to cover 100% of your study material. So basically, the whole of your accounting paper comes from study material only. So there would be some questions which are exactly same as study material questions. कि जो study material में question है वही paper में भी आया है. Then there would be some questions जिसमें से figures या numbers में modification होगी कि 5,000 का 500 कर दिया, 10 का 50 कर दिया, similar to this. And then there would be some big questions 10, 15, 20 नंबर के जो कि study material की छोटी छोटी adjustment से मिलके बने होंगे. एंड अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो मेरे पे देन यू कैन चेक इट ऑन योर ओन. जस्ट पिक एनी क्वेश्चन पेपर एंड देन मैप इट विद द स्टडी मटेरियल. You will get your proof. So in short, your paper comes from study material only. That's why I'm saying ki you have to make sure that you are doing each and every question of study material, be it illustration, be it back questions. You just cannot skip anything from the study material. The study material is like a holy book for you. गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है स्टडी मटेरियल आपके लिए. तो उसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, राइट? दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. अब सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट टेक द ट्रू फॉल्स लाइटली. See, you know that there are 6 true false questions in your paper covering 12 marks, and out of which 3 to 4 are from study material only. And trust me, guys, these true false questions are very easy to answer. It's like a gift for you in the examination. But you have to make sure कि आप सिर्फ true या false लिख के नहीं आ रहे हो एग्जाम में. You need to mention the reasoning as well for saying so. Like true क्यों बोल रहे हो या false क्यों बोल रहे हो, उसके पीछे कोई reasoning होगी. You have to mention that कि like जैसे आपने true या false लिखा तो एक लाइन छोड़ के फिर आपको पैराग्राफ में उसकी रीजनिंग लिखनी पड़ेगी क्यों आपने बोला ये ट्रू है या क्यों आपने बोला ये फॉल्स, राइट? दिस इज योर सेकंड थिंग. नाउ द थर्ड थिंग इज कि यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स. सो व्हेन यू आर taking your classes or when you are doing a self study, then you have to ensure you are making a proper detailed notes for all the chapters covering all the concepts, because you will be using these notes during a revision time. एंड आपके नोट्स कुछ ऐसे होने चाहिए कि जब भी आप किसी चैप्टर का रिवीजन करने बैठ रहे हो देन आधे घंटे के अंदर अंदर आप उन नोट्स की हेल्प से उस चैप्टर को रिवाइज कर पा रहे हो एंड देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मूव कर जाओगे, राइट? दिस इज योर थर्ड पॉइंट कि आपको नोट्स बनाने हैं. अब फोर्थ पॉइंट आपका आता है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स in an exam like environment, like proper 3 घंटा 15 मिनट बैठ के, and then you will figure out your mistakes in the topics in which you are weak and then revise those topics immediately, right? And after that you will be doing RTPs and MTPs of last 2 attempts. ठीक है, this is your fourth point. अब fifth point आपका आता है that you have to follow proper formatting in your answers. Like when you're writing your answers in account ना, then there are some proper formats for it. Like journal बना रहे हो, like journal entries कर रहे हो तो उसका proper format है. ledger बना रहे हो कोई तो उसका proper format है. फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका प्रॉपर फॉर्मेट है. एंड यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट बिकॉज अकाउंट्स के पेपर में फॉर्मेट्स एंड प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है. अनलेस की कोई ऐसी सिचुएशन है आपकी जहाँ पे आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में बट टाइम बहुत कम है, देन तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आपको ऑब्वियसली फॉर्मेट को साइडलाइन करके आपका फोकस रहेगा कि आप 100 नंबर का अटेम्प्ट कर पाओ. बट एक्सेप्ट फॉर दैट सिचुएशन इन ऑल अदर केसेस यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कर लो. ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट. नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट विच इज रिलेटेड टू थ्योरी. अब थ्योरी में क्या करना है अपने को, आपको भी पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आते नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं. तो थ्योरी के लिए क्या करें, स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ें? पढ़ सकते हो, देखो आपके ऊपर है, बट दैट इज़ नॉट फीजिबल एज पे मी. सो हम व्हाट आई डिड एंड व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू कि जो बैक क्वेश्चंस होते हैं ना स्टडी मटेरियल में थ्योरी वाले, प्लस जो आप PYQs अटेम्प्ट करोगे, RTP MTPs अटेम्प्ट करोगे, उनमें जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उन सब की एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? एंड सिर्फ उनको प्रैक्टिस करके आप चले जाओ एंड दोज विल बी इनफ फॉर यू फॉर थ्योरी. बिकॉज जितना हमने देखा है कि उससे बाहर जनरली नहीं आता है थ्योरी क्वेश्चन, एंड इन केस अगर आता भी है तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. बिकॉज भाई कॉन्सेप्ट से बाहर तो नहीं आएगा ना कुछ भी, एंड कॉन्सेप्ट तो आपने कर ही रखा है, तो कॉन्सेप्ट के अंदर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले वो आपसे क्या फर्क पड़ता है, आप आंसर कर सकते हो, राइट? सो
घबराना नहीं है इस बात को लेके। सो दिस वाज योर 6 पॉइंट। अब उसके बाद अपना आता है सम जनरल पॉइंट्स कि भाई कैलकुलेटर चलाना सीख लेना आप अच्छे से, ठीक है। कैलकुलेटर ट्रिक्स अच्छे से सीख लेना। अगर आपको कैलकुलेटर चलाना आता है देन इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू इन द एग्जामिनेशन। अकाउंट्स में अगर बच गए तो मैथ्स में फंस जाओगे, राइट। तो कैलकुलेटर चलाना सीख ही लेना अच्छे से। उसके बाद आपका आता है कि आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है इन एनी केस। अगर आप मन में टारगेट लेके चल रहे हो कि मेरे को 80-90 लाने हैं, तो फिर भाई 100 नंबर का अटेंड करना ही करना पड़ेगा। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज कि जब भी आप अकाउंट्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, मान लो अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, देन आप उस पर स्टार मार्क कर लें। मान लो नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट टाइम भी दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में, तो एक और स्टार लगा देना उस पर। ना उस पर डबल स्टार मार्किंग हो रखी है, ठीक है। तो जब आप रिवीजन करोगे ना, सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन या एग्जाम से एक दिन पहले उसको देखोगे, तो आप सिर्फ उन क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाए थे फर्स्ट या सेकेंड टाइम में, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी टाइम बचाने में, राइट। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माई साइड एंड दिस वॉज ऑल अबाउट कि मैंने कैसे 93 स्कोर करे थे अकाउंट्स में। एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टिल देन, गुड बाय एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।